बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और आपको पता है कि व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम कॉन्फेडरेशन वाज अडॉप्टेड। हेलो जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही? मौसम बंद कर यार अपना। आ रही है सर, आ रही है ना? अच्छा, when United States of America came at that time, जी बच्चे अभी आ रही है, अब बेफिक्र आ रही है। ओके, एट दैट टाइम, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। So when United States of America got independence, at that time Confederation was adopted in United States of America, but Confederation was very weak. Central government was not having any cooperation from the federating states, confederating states. So because of this reason, everything was falling apart from each other. Central government was not having any strength. I told you in my previous session that not more than 700 soldiers were on the payroll of the United States of American Army, and confederating states, they were all in all. They were everything. Later on, Constitutional Convention was made, and Confederation was converted into federalism. It was converted into federalism. अच्छा, word federal is basically derived from word feudus. Feudus का मतलब है कि formal agreement, written agreement. Formal agreement and written agreement. Written agreement and formal agreement between what? Formal agreement and written agreement between central government and federating states. Feudus means formal agreement. Acha, you know that you are already having a better understanding why federalism is introduced in the state. If a society is heterogeneous in terms of culture, color, creed, ethnicity, then people believe that in order to regulate that heterogeneous society, federal form of government is more important. Federal form of system is more appropriate, more specifically. So, and so was the case with the United States of American society. When United States of America came into being, at that time 13 states were there. Now there are 50 states. And federal state के अंदर आपको पता है, federal state is a state in which supreme but few powers by the constitutions are given to the central government to rule over the whole country, and general but many powers are given to the federating units to rule over the part of the country. ये वो definition है that we learn in the very first lecture when you were enrolled at UMT. तो लेकिन दूसरी तरफ से अगर एक और जो comprehensive definition वो इस तरीके से देखते हैं, federal form of government basically provides authority to the states. Authority is basically being shared between the central government and the federating states, and both center and federating states जो होती हैं, they used to be autonomous within their own area of influence, within their own domains. अब ये है basically federal state के अंदर three tiers of powers share की जाते हैं. एक होता है central government, दूसरा होता है federating states या जिनको प्रोविंसेस भी कहते हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात जो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर द वर्ड फेडरल एंड फेडरलिज्म इज नॉट बीइंग यूज्ड, बट व्हेनेवर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इज बेसिकally being referred, it is referred to the central government, it is referred to the powers of Congress, it is referred to the powers of executive in the US Constitution. Word federal or federalism is not being used in the whole content of the US Constitution. अच्छा, ये इन चीजों को समझना. अब हमने देखना है
फेडरलिज्म की फीचर्स क्या हैं? फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म की? फीचर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फीचर्स जो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स हैं वो वही हैं जो दुनिया भर के ज्यादातर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की होती हैं, जैसा कि प्रोहिबिशन ऑफ सक्सेशन, यानी कि इफ अ स्टेट इज गोइंग टू ज्वाइन यू, if a state is going to join a federal state and later on that state is willing to not be a part of that federal state anymore, if a state is willing to separate itself from the federal state, that state is not allowed to do so. So is the case with the US Constitution. United States of America के Constitution के अंदर भी ऐसा ही है कि if a state is going to unite and the state became a member of United States of America, and then if any state is willing to go away from it, means the state is willing to dismember itself from the US Constitution, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि अलाउ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ नहीं है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द फुल अथॉरिटी टू स्टॉप इट्स वे फ्रॉम गोइंग अवे, तो उसको रोकना है। तो यू जैसे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट देन यू कैन नॉट मेक योरसेल्फ अवे, मीन यू कैन नॉट सेपरेट योरसेल्फ, वो नहीं कर सकते। सो इज द केस विद द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सप्रीमेसी है, फेडरल का सप्रीमेसी का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करती है इन मोस्ट ऑफ द अफेयर्स। इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स, तो ये क्या है, पावर क्या है, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ा ये रेशियो ये है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू द 18th अमेंडमेंट, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर शेयरिंग रेशियो थी 52% वाज गिवन टू द provisional governments and 48% was 48 या 49 around 49% was given to the central government। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर supremacy of federal governments किस तरीके से है, सेंट्रल गवर्नमेंट used to have 56% share in power and the जो federating states हैं they have just 44% share in power। बच्चे मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। इसी वजह से ये कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर फेडरल सुप्रीमेसी ज्यादा है। सर ये परसेंटेज एक दफा बता दें। परसेंटेज मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करती है इन पावर शेयरिंग एंड मनी मेकिंग सारे मामला के अंदर, एंड 56% शेयर इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पावर मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और 44% इज बेसिकली गिवन टू द फेडरेटिंग स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स है वहां पे दिया जाता है। दूसरी जो फीचर है वो ये है कि लाइक ऑल अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली दो स्टेप्स हैं, इफ the central government is willing to bring any kind of change in the content and the context of constitution, तो इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि कांग्रेस पास करेगी विद 2/3 मेजोरिटी से, और स्टेप नंबर 2 है वो जो पास ड्राफ्ट होगा वो नेशनल कमीशन, नेशनल पब्लिशिंग कमीशन को भेजा जाएगा, वो फिर उसके गवर्नर्स को भेजेगा, गवर्नर्स फिर लेजिस्लेचर में लेकर आएंगे, लेजिस्लेचर जो है वो 3/4 मेजोरिटी से उसको पास करेंगे। नॉट ओनली लेजिस्लेचर विल बी पासिंग देम with passing the draft 3/4 majority, बल्कि वो जो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं which are going to give their consent उनका भी रिक्वायर है 3/4% उनकी वो चाहिए, एक्सेंट चाहिए, ओनली देन ये जो ड्राफ्ट है वो पास होगा। इसी वजह से मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था 11,780 से ज्यादा प्रपोज्ड ड्राफ्ट ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, बट स्टिल ओनली 27 दे आर बीइंग मेड अ पार्ट। आपने जी रवि क्या कह रहे हो? जो आपने टोटल नंबर ऑफ के आगे जो बोल रहा था उसकी आवाज नहीं आई, किसका टोटल नंबर? किसमें बेटा? अच्छा मैंने आपको ये कहा कि दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के लेजिस्लेचर से 3/4 होना चाहिए अप्रूवल, और जो अमेरिका की टोटल स्टेट्स हैं और उनमें से भी टोटल 3/4 जो स्टेट्स हैं वो कॉन्सेंट देंगी, ओनली देन अ प्रपोज्ड ड्राफ्ट कैन बी मेड। अब इसके अंदर एक स्लैश है, कोई भी एक मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। बच्चे समझ आई टाइमिंग? हेलो, आपने ये जो अभी बात की कि टोटल नंबर ऑफ, ये आप रेशियो की बात कर रहे थे, वहां से वॉइस डिस्टर्ब हुई है तो मुझे समझ नहीं आया। नहीं ये मैं बता रहा था आपको कि अगर प्रपोज्ड ड्राफ्ट को पास करवाना है तो अमेंडमेंट में आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड, एंड उसके लिए 2 स्टेप ऑफ पासिंग एन अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। 2 स्टेप्स का मेथड ऑफ गेटिंग एन अमेंडमेंट पास, वो हमने जी मैंने बताया हुआ था। अच्छा उसके बाद
ठीक हो। अगली फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब डिवीजन ऑफ पावर से क्या मुराद है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो दुनिया के तीन किस्म के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। वन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन which is followed by Pakistan, and there is another example of constitution which is followed by Canada, and the third is the United States of America. अब division of power with reference to the residuary powers. जी जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर आवाज कट गई है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी आवाज से इतना नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी दोबारा सुनिएगा जरा प्लीज। सर ये रिपीट कर दें जो अभी सर। मैं बताता हूँ विद रेफरेंस टू द डिवीजन्स ऑफ पावर, विद रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ पावर यानी कि रेजिड्यूरी पावर्स को किस तरीके से डिवीजन की जाती है उस चीज को जरा समझते हैं। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा ओके, अब वो किस किस्म की है जरा उस चीज को देखें। बेसिकली विद रेफरेंस टू द डिवीजन्स ऑफ पावर तीन किस्म के मेथड्स को फॉलो किया जाता है दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। रेजिड्यूरी पावर्स को एनलिस्ट करना, एनलिस्ट करने का मतलब है टू लिमिट द पावर। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के अंदर द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पावर ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट बोथ ऑफ दीज पावर्स दे आर इनलिस्टेड, यानी कि बता दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ये पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ये पावर है। ये दोनों मेथड पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जाता है। एक और तरह का मेथड है जिसके अंदर the powers of the federating states they are enlisted, उनको enlist किया जाता है, लेकिन and residuary powers are given to the central government। ये कनाडा के अंदर होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर the powers of the central government they are enlisted and the residuary powers they are given to the federating states, means central government की पावर को लिस्ट किया गया है, मींस लिमिट किया गया है, and the residuary powers they are given to the federating units कि वो अगर if they are going to face any kind of dilemma they can make decision वो स्पिरिट के मुताबिक। मेरी बात समझ आई है ये बात? अच्छा, अब ये जो रेजिड्यूरी पावर्स बताई गई हैं, रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर भी फर्दर पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मुराद है? सेंट्रल गवर्नमेंट से मुराद ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मुराद भी हेलो बच्चों आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि देयर आर थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, ये तो हमने कर लिया। लेकिन अब इफ फॉर इंस्टेंस कौन सी पावर्स हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल आपने याद रखना है, वो ये है कि the powers of the central government they are enlisted and residuary powers they are given to the states को दे दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया गया, और कितने हैं सब्जेक्ट्स हैं? देयर आर टोटल 18 सब्जेक्ट्स जो एनलिस्ट किए गए हैं, एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज गिवन टू द फेडरेटिंग स्टेट्स को दे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो पावर मैंने आपको लिस्टिंग और अनलिस्टिंग का बताया, इसके अंदर भी फार्मूला है। अब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया गया वो उसको कैसे लिस्ट किया गया? देयर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ लिस्ट टू गिव द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसमें पहली लिस्ट क्या है? अ लिस्ट ऑन विच कांग्रेस कैन मेक लेजिस्लेशन, और फिर बताया गया देयर इज अनदर लिस्ट ऑन विच कांग्रेस कैन नॉट मेक लेजिस्लेशन। तो एक लिस्ट दे दी गई, सेपरेट कर दिया गया कांग्रेस को कि आपने इस पे लेजिस्लेशन करनी, और एक लिस्ट कांग्रेस को दे दी गई कि ये तुम्हारे एरियाज हैं, ये तुम्हारे एरियाज नहीं है जिनके ऊपर तुमने लिस्टिंग करनी है। मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। कांग्रेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो मुल्क के अंदर करेंसी को वैल्यू और डी वैल्यू करना, नई करेंसी को छापना वगैरह जरूरी है। ये तो कांग्रेस की एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये आप टेक्सास से, मिनेसोटा से, न्यूयॉर्क से नहीं ले सकते, लेकिन न्यूयॉर्क क्या कर सकते हैं जो कांग्रेस नहीं कर सकती? न्यूयॉर्क जो फेडरेटिंग स्टेट्स हैं वो क्या कर सकती हैं कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हेल्ड कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फेडरेटिंग स्टेट से बनना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं बनना। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तो ये पावर फेडरेटिंग स्टेट्स की है, ये पावर ये लिस्ट कर गए। देयर इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच central government can make legislation, there is a list of subjects on which central government cannot make legislation, और दूसरी बात है there is a list on which states they cannot make legislation। अब जैसा कि करेंसी है, करेंसी के ऊपर states they can't make any kind of legislation, वो नहीं कर सकती। अब ये दो तरह की पावर होती हैं, इसके अंदर एक कंकरेंट पावर होती है और एक एक्सक्लूसिव पावर होती है। वो इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे जब हम कांग्रेस का रूल को डिस्कस करेंगे।
तो how many areas are there which are given to the federating states to make legislation? What is the total number of those areas? क्या नंबर है? कौन बताएगा? हेलो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर, 18 दी गई है, 18 18 सब्जेक्ट्स, और बाकी रेजिडोरी पावर जो है वो सारी जो है वो स्टेट्स को दी गई है, कन्फेडरेटिंग स्टेट। हाँ अच्छा चलो, और वो जो रेजिड्यूरी पावर की शेयरिंग है उसका बताएं आप मुझे कि वो किस प्रिंसिपल के तहत दी गई है, क्या लिस्टिंग इन लिस्टिंग हुई है? सर उसमें 3 लिस्ट्स होते हैं सर, मतलब और फर्स्ट लिस्ट ये कि उसमें वो कांग्रेस को दी जाती है कि आप नहीं प्रिंसिपल जो 3 लेजिस्लेशन ओनली इन दिस लिस्ट। अमेरिकन प्रिंसिपल क्या है जिसके मुताबिक वो फेडरल अमेरिकन फेडरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है अमेरिकन, जैसा मैंने बताया कनाडा पाकिस्तान का? सर 44 दूसरी को और 56 सेंट्रल गवर्नमेंट को। नहीं प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग जो मैंने बताया था, रेजिड्यूरी पावर शेयरिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं, कैनेडियन, पाकिस्तानी मॉडल एंड यूएस मॉडल। यूएस मॉडल क्या है? यूएस मॉडल ये है, the powers of the central government they are listed and residuary powers they are given to the federating states, ये है, ठीक है? यानी powers of the central government they are listed, they are limited, ठीक है बच्चे? हाँ वो लिमिटेड है। अच्छा याद रखिएगा, ये when the constitutional draft was being made, तब तक इसके अंदर ये पावर शेयरिंग नहीं थी। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर 10 और अमेंडमेंट नंबर 14, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाई गई हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फेडरेटिंग स्टेट्स, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद याद रखिएगा, एज आई टोल्ड यू, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ फेडरल or federalism is written in the content of the US Constitution. Then how US federalism is becoming powerful by leaps and bounds? क्यों, वजह क्या है? उसके लिए जुडिशरी played very important role. जुडिशरी ने सेंट्रल, हमेशा कहते हैं जुडिशरी हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम केसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, फेडरेटिंग यूनिट्स को पावर नहीं दी। ये याद रख लेंगे। दैट्स व्हाई इट इज बिलीव के अमेरिकन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज अ ग्रेटर रोल ऑफ यूएस जुडिशरी, और जुडिशरी इज बेसिकली कंसीडर्ड वेरी इंडिपेंडेंट, और उसको बहुत इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है। आप लोगों को बेसिक सेंस है व्हाई जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड इन फेडरलिज्म? इसकी क्या वजह क्या है, बताइए मुझे क्यों? सर जुडिशरी अगर बाइस्ड होगी तो फिर ऑब्वियसली वो फिर उस तरह के डिसीजंस लेगी जो कि स्टेट के हक में नहीं होंगे। जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जब जुडिशरी ने जिसमें हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था, उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो ना होता तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल हमारा जो सारा फिनोमेना है वो आज उस तरह से ना होता। तो गलत बेसिस आपकी जुडिशियल जो जुडिशरी ने रखी, यू कैन से कि अगर जितना वो बाइस्ड होगी तो प्रॉब्लमेटिक होगा। चलो अच्छा, एक ये बात है। एक दूसरी बात इस तरह से इसी से मिलती जुलती दूसरी बात, एक और इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि इन एवरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन the institution of judiciary is given the role to interpret the constitution, and not only to interpret the constitution but also to become the custodian of constitution. And in order to make any institution the custodian of constitution, that institution has to be all in every aspect. ये बात समझ आई है मेरी बात की? नो सर, रिपीट कर दें। क्या मैंने आपकी आवाज नहीं आई। इन एवरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रोल ऑफ जुडिशरी हैज टू बी इंक्रीज्ड। रीजन बीइंग बिकॉज ये बिलीव किया जाता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो लॉ बनाए उसको इंटरप्रेट कर सके, ना सिर्फ इंटरप्रेट कर सके बल्कि उस लॉ की कस्टोडियन बन जाए, ताकि उस लॉ को अगर if one law is being made by the central government and later on after one decade or second decade or third decade another government is going to violate it, then there must be some institution which can interpret, no, whatever is being done by the recent government is wrong. ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम इंस्टीट्यूशन जो ऑल इन ऑल होना चाहिए। ये इसकी एक दूसरी इंटरप्रिटेशन बनती है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लाइक इन पाकिस्तान जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है।
सुप्रीम से मुराद ये है कि जैसा कि आपको रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट का पता है, जिन डेमोक्रेसी डजंट रूल, क्या रूल करता है? लॉ रूल करता है। देन इफ लॉ हैज टू रूल, then law has to be supreme by every criteria। वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया था, द किंग इज लॉ और लॉ इज किंग का डिफरेंस समझ आ रही है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था? किंग इज लॉ और लॉ इज किंग। किंग इज लॉ जो है कि मतलब कि अथॉरिटेरियन रूल को सपोर्ट करता है। व्हेन वी से दैट द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसका मतलब ये है लॉ इज किंग, इन फ्रंट ऑफ लॉ nobody is supreme, law is supreme। या जो भी रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाते हैं वो सुप्रीम है, बाकी कुछ नहीं सुप्रीम। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आई है? यस सर। ओके, अगली बात बाई कैमरा लेजिस्लेचर। बाई कैमरा लेजिस्लेचर आपको पता है इसकी वजह क्या है? इन ऑर्डर टू हैव द यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ हायर, इन ऑर्डर टू हैव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, उसके अंदर पूरे जितने 50 स्टेट्स हैं, चाहे समाल हैं ये बड़े हैं, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, एवरी स्टेट इज सपोज्ड टू गिव 2 रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे जाते हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एंड सम स्टेट्स दे आर वेरी बिग। मैंने आपको बताया था कौन सी यानी कौन सी स्टेट सबसे बड़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, मैंने बताया था जिसके सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट है। कैलिफोर्निया स्टेट सबसे ज्यादा है, तकरीबन 53-54 के। आपकी स्टेट की क्या आप बात करें? क्वेश्चन आपने क्या किया था? कैलिफोर्निया की बाई कैमरा लेजिस्लेचर, मैंने आपको बताया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर यूजुअली बाई कैमरा लेजिस्लेचर होती है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर के अंदर दोनों किस्म के प्रिंसिपल्स को एडहेयर किया जाता है कि means those federating states which are having more power, they would be having more representation in the lower house of the assembly, and in terms of in order to bring equality in the upper house of the legislature, every state would be having equality in terms of having representation। तो upper house में equal representation, no matter how big you are, no matter how small you are, or in terms of population you would be having more representation। तो कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो 53 रिप्रेजेंटेटिव भेजती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, और 2 कांग्रेस के मिलके जो कैलिफोर्निया स्टेट 55 रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाने का मतलब क्या है? जो बिग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन दे वुड बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी टू ब्रिंग नो मैटर हाउ बिग यू आर, हाउ स्मॉल यू आर, और अपर हाउस में आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसलिए रिक्वायर्ड है इन एवरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यू गेट माय आइडिया? बच्चों ये बात समझ आई है आप लोगों को? अब अगली बात सुनते हैं जरा। अच्छा, अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है जो समझने के लिए जरूरी है वो ये है कि हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू नेगोशिएट with the federating units, and how federating units they are going to negotiate with the federal government in order to protect their rights। अब ये क्या है, ये किस तरीके से चल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर आपको लोगों को पता है सेंट्रलाइजेशन हमेशा से ज्यादा रही है और फेडरल स्टेट्स की पावर बहुत कम रही है। 18th अमेंडमेंट के बाद somehow they are now equal। लेकिन अमेरिका के अंदर दिस प्रोसेस हैज बीन वेरी एवोल्यूशनरी, बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी रहा है। पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर कन्फेडरेशन थी, कन्फेडरेशन हुआ तो कन्फेडरेशन खत्म हुई तो फेडरलिज्म आया, वीक फेडरलिज्म आया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज वेरी वीक। लेटर ऑन बहुत सारे फैक्टर थे विच गेव मोर पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती चले गई, सो मच सो पीपल स्टार्टेड टू क्लेम दैट ओल्ड फेडरलिज्म इज डेड नाउ, ओल्ड फेडरलिज्म खत्म हो गया, इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन आ गई। ये जब इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हुई विद द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, इसके अंदर बहुत सारे फेजेस आए। अब हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसके फेजेस हैं। इस फेजेस को देखना है कि ये कैसे कैसे फेजेस में चला है। एक पहला फेज है, उसको कहते हैं डुअल फेडरलिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कहा गया है कि डुअल फेडरलिज्म है। डुअल फेडरलिज्म का मतलब क्या है? मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम इन इट्स डोमेन एंड फेडरेटिंग स्टेट्स दे आर सुप्रीम इन देयर डोमेन, इसलिए इसको कहते हैं देयर इज अ डुअल फेडरलिज्म। मेरी बात समझ आई है? वहां पे डुअल फेडरलिज्म है, एक बात। और दूसरी बात क्या है? स्टेट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम एरियाज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट्स इन सम एरियाज। सो दिस इज हाउ द डुअल सिस्टम ऑफ sovereignty is going on within the Constitution of United States of America। बच्चों ये बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। ओके,
ये जो डुअल सिस्टम का समझ आ गई। अच्छा, इस चीज को, ये जो डुअल सिस्टम ऑफ सोवरेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पीपल दे यूजुअली रेफर इट एज द लेयर्ड केक फेडरलिज्म, इसको कहते हैं लेयर्ड केक फेडरलिज्म। जैसे एक केक है, फेडरलिज्म का एक केक है, उसके ऊपर सब एक परत है। फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने लेयर्ड केक खाया होगा, बनाना फ्लेवर होता है, वनीला होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, मैंगो होता है। आज मेरी बच्ची की वैसे भी थी तो एक लेयर्ड केक ही आया हुआ था, तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3-4 किस्म की इस तरह की उनके वो थे। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो फेडरलिज्म की है, उससे नीचे वाली जो लेयर है वो सेंट्रल, वो फेडरेटिंग की है, फेडरेटिंग जो स्टेट्स हैं। और उससे नीचे वाली जो लेयर है वो है इसके लोकल बॉडी सिस्टम की। एंड लोकल बॉडी सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2-3 डिफरेंट लेयर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों ये जो डुअल सिस्टम है ये लेयर्ड केक फेडरलिज्म कहलाता है। लेयर्ड केक फेडरलिज्म, एक विद इन एक फेडरलिज्म लेयर्स हैं, एंड दे बोथ इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड इफ द पावर्स दे आर गोइंग टू बी डिफ्यूज्ड विद ईच अदर, इंटरेक्शन नहीं कर रहा, एंड इफ पावर्स दे आर गोइंग टू गेट डिफ्यूज्ड विद ईच अदर, अगर हो जाता है तो उसको फिर कहते हैं मार्बल फेडरलिज्म। ये बातें दो समझ आई है, लेयर्ड केक फेडरलिज्म और मार्बल फेडरलिज्म, समझ आई है बच्चों? ये दो बातें समझ आई है? यस सर। लेयर्ड केक फेडरलिज्म, फॉर इंस्टेंस फेडरलिज्म एक केक है, ठीक है, इसके अंदर लेयर्स हैं ऑफ पावर। पहली लेयर्स किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी लेयर किसकी? फेडरेटिंग स्टेट्स की। तीसरी लेयर किसकी? लोकल बॉडी सिस्टम की। केक में ऐसे ही होता है ना, आपने जब लेयर्स वगैरह केक देते हैं, और दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कहते हैं। एंड इफ दे आर इंटरेक्टिंग while keeping themselves limited within their own domain, तो ये layer cake होगा। and if they are interacting while diffusing their powers with each other, इसको फिर marble cake federalism कहते हैं। अब मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर, आ गई। ओके, दैट्स ग्रेट। अगली बात, दूसरी बात, ये एक फेज था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, एक फेज था गाइस, इसको एक फेज कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरलिज्म का। उसके बाद एक क्रिएटिव फेडरलिज्म आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्रिएटिव फेडरलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरा समझिए। मैंने आपको बताया हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू नेगोशिएट, इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसके डिफरेंट फेजेस हैं। पहला आया था डुअल केक, ये 1930s 1910 से 1930s के दरमियान चलता रहा, इसको डुअल फेडरलिज्म के, और ये उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद आया क्रिएटिव फेडरलिज्म। क्रिएटिव फेडरलिज्म को पिकेट फेंस फेडरलिज्म भी कहते हैं। पिकेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोगों को, आप लोग देख भी लीजिएगा, PICKET, पिकेट फेंस फेडरलिज्म। पिकेट फेंस फेडरलिज्म, ये पिकेट फेंस जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिडिल क्लास का एक मेटाफर है। आप लोगों ने अगर वो मूवीज देखी हो तो वहां पे अमेरिकन के जो मिडिल क्लास फैमिलीज के जो घर होते थे पुराने जमाने में कंट्री साइड पे, उनके आगे लकड़ियों के एक फेंस लगे होते थे, उसको पिकेट केक कहते थे, पिकेट फेंस फेडरलिज्म कहते हैं। लेकिन ये मेटाफर है, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन फेडरलिज्म। इट इज बेसिकली पिकेट फेंस फेडरलिज्म एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड रिलेशंस ऑफ ऑल स्टेट्स। ये इंटर गवर्नमेंट रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। इंटर गवर्नमेंट रिलेशंस, अब इंटर गवर्नमेंट कौन सा है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन दोनों के दरमियान इंटर गवर्नमेंट रिलेशंस को क्लियर करता है। एंड देन इट फर्दर एक्सप्लेन्स द इंटीग्रेशन अमंग देम, और इन दोनों के दरमियान इंटीग्रेशन की बात करता है। कहता है, और ये किस तरीके से, जरा गौर से सुनिएगा, कहते हैं दिस पिकेट फेंस फेडरलिज्म फेवर्स द फेडरल गवर्नमेंट by creating a dependency on the federal government. You get my idea? Let me say it again. Picket fence federalism favors the federal government by creating a condition of dependency on the federal government. You get my idea? समझ आई मेरी बात की? और इसको कहते हैं क्रिएटिव फेडरलिज्म। क्रिएटिव फेडरलिज्म इसको कहते हैं। अब मैं मिसाल देके बताता हूं क्या मतलब है इससे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अरूज पे थी, तो अमेरिकन जो पहले इंडस्ट्री थी वो एग्रीगेरियन थी, तो वो अर्बनाइजेशन की तरफ आना शुरू हो गए। अर्बनाइजेशन का वो जो, और देहात भी अर्बनाइजेशन की मूवमेंट के अंदर जाना शुरू हो गए।
तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा उन चीजों को रोकने के लिए। और फिर दिस इज हाउ, तो ये जो स्टेट्स थी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कंटेन दिस इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो स्टेट्स थी उन्होंने अपनी डिपेंडेंस बढ़ा दी, इसलिए इसको कहते हैं पिकेट फेंस फेडरलिज्म। यू गेट माय आइडिया गाइस? हेलो, यस सर। ओए किथे सुती कौम बोल दे नहीं पाए। यस सर। अच्छा, अगली बात है, पहला फेज डुअल फेडरलिज्म, सेकंड फेज क्रिएटिव फेडरलिज्म, थर्ड फेज इज नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या मुराद है? फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कहता है कि सेंट्रल, ये जो फेडरेटिंग स्टेट्स हैं, दे आर गोइंग टू कोऑपरेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट in order to get benefits, but at the same time upholding the sovereignty and supremacy of central government. You get my idea? इसको कहते हैं cooperative federalism. Cooperative federalism के अंदर I told you कि ये जो क्या करते हैं, central जो federating states हैं, they are going to cooperate with central government in order to get benefits, at the same times acknowledging the supremacy of central government. Supremacy of central government in the internal affairs of the states, ये याद रखना है। You got my idea? जो federating states हैं, they are going to cooperate with central government and they start getting benefits from central government, at the same time acknowledging the supremacy of central government in the internal affairs of states. ये है, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये तीसरा ट्रेंड था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरलिज्म के अंदर, हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फेडरेटिंग यूनिट्स दे वर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। वेरी फर्स्ट वाज द डुअल फेडरलिज्म, सेकंड वाज द क्रिएटिव फेडरलिज्म जिसको पिकेट फेंस फेडरलिज्म भी कहते हैं, एंड द थर्ड वाज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसके बाद 1970s के अंदर अनदर ट्रेंड स्टार्टेड टू हैपन इन द यूएस फेडरलिज्म, उसको कहते हैं न्यू फेडरलिज्म। इसको कहते हैं न्यू फेडरलिज्म, इसको न्यू फेडरलिज्म कहते हैं। अब न्यू फेडरलिज्म क्या है? न्यू फेडरलिज्म स्टार्टेड टू इमर्ज इन यूएस ड्यूरिंग 1960s एंड 70s, और ये न्यू फेडरलिज्म इज नोन बिकॉज ऑफ टू अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, रोनाल्ड रीगन और रिचर्ड निक्सन। रेगन के दौर में और निक्सन के दौर के अंदर ये फेडरलिज्म आया। अब ये क्या था? इसका देयर वाज अ पॉपुलर नोशन बिहाइंड दिस फेडरलिज्म, में बहुत पॉपुलर नोशन था। वो नोशन क्या था? दैट नोशन वाज के अमेरिकन फेडरलिज्म इज बिकमिंग वेरी सेंट्रलाइज्ड एंड द फेडरेटिंग स्टेट्स दे आर एट द मर्सी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, एंड फेडरल गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनको ब्लॉक कर देती है एंड डज नॉट प्रोवाइड जो एप्रोप्रिएट उनको फंड्स नहीं देती। तो इस वजह से रेगन और निक्सन के दौर के अंदर ये किया गया कि न्यू फेडरलिज्म, ये वाला न्यू फेडरलिज्म, ये डिक्लेयर किया गया कि जो स्टेट्स हैं दे वुड बी क्लेमिंग सम पावर्स while recognizing that the federal government is the highest form of government in United States of America. मेरी बात समझ आई है? मेरी बात नहीं आई समझ बात बच्चों? रिपीट कर सर, रिपीट कर दे सर एक दफा। दोबारा सुनो। ये बेसिकली किस बुनियाद के ऊपर बेस करता है? न्यू फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेवोल्यूशन। और इसके पीछे क्या नोशन था? नोशन वाज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरलिज्म इज बिकमिंग वेरी सेंट्रलाइज्ड, इट इज बिकमिंग वेरी सेंट्रलाइज्ड, ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होता जा रहा है। यू गेट माय आइडिया? and the most of the federating states they are looking towards the central government in order to get resources. और इस तासुर को खत्म करने के लिए रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन ने they brought the notion of new federalism in United States of America. इसके अंदर जो federating states हैं they start claiming some power while recognizing the supremacy of federal state. You get my idea? वो फेडरल स्टेट की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करते हैं, वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? और पावर लेना शुरू कर देती हैं उससे। हेलो,
यार जी जी सर। कौन सर, आ रही है, समझ आ रही है। रिस्पॉन्स भी आना चाहिए ना यार। सवाल बंदा करता है हाँ नहीं यूं शापा कुछ तो करो यार। मुझे समझ नहीं आता, सर सारे लिख सो रहे गए हैं, हो, सर लिख रहे हैं। सारे सो जाते हैं मुझे। सर अच्छा जी, लेक्चर नोट कर रहे हैं स्पीड में। अच्छा सर अब वो मुझे बहुत चलो स्पीड पता है। लग जाता है। अब मुझे ये बताएं, अमेरिकन फेडरलिज्म के अंदर कितने ट्रेंड्स आए, टोटल कितने आए? सर 4। और 4? नहीं नहीं, पहले शुरू में बताओ ना। पहले वीक फेडरलिज्म था, ठीक है, फिर सेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंट्रलाइज के बाद जो इंपॉर्टेंट आया वो आया डुअल का, उसके बाद क्रिएटिव आया, फिर कोऑपरेटिव आया, और उसके बाद न्यू फेडरलिज्म 1970 से ऑनवर्ड आया। ठीक है गाइस, 60-70 से। और ये सर आज के लिए बहुत है सर। नहीं नहीं खबरदार, इसको रुको, अभी इतना नहीं कुछ भी किया अभी हमने। अच्छा अगली बात सुनो। तो ये जो, अच्छा ये दिस इज हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल स्टेट फेडरेटिंग स्टेट्स दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। इन चीजों का आप लोगों ने सुना। उसके बाद किस तरीके से, अब देयर इज अ पॉपुलर नोशन दैट स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज हैविंग वेरी पावरफुल फेडरल सिस्टम। रीजन बीइंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितना परसेंट है, 54% power sharing is being commanded by central government and just 44% is given to the federating states। ये बड़ा बड़ा पॉपुलर नोशन है। इसका ट्रेंड, वजह क्या हुई, क्यों ऐसे हुआ, उसके ट्रेंड्स हैं। आपको पता है कि जो अमेरिका की जब अमेरिका ने आजादी हासिल की उस वक्त कुछ नॉर्थर्न स्टेट्स थी और कुछ साउदर्न स्टेट्स थी। साउदर्न स्टेट्स दे वर वीक, दे वर फ्यूडलिस्टिक इन अप्रोच। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी दे वर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड दे वर लिबरल, दे वर एजुकेटेड। ये इन दोनों के दरमियान जो सेंट्रल स्टेट्स थी, जो साउदर्न स्टेट्स थी, दे वर एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी दे वर प्रो सेंट्रल, वो प्रो सेंटर थे। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के दरमियान दिस इज हाउ द कॉन्फ्लिक्ट वाज गोइंग ऑन। तो उस दरमियान कि जो साउदर्न स्टेट्स थी दे वर वेरी पुअर, और उनको इन ऑर्डर टू गेट more and more economic and social incentives from the central government, they started to favor the central forces in the United States of America. This was the one of those important factors which played an important role while stunting the central government more centralized in nature. ये एक फैक्टर था। उसके बाद सिविल वॉर, ये जो पहले मैंने आपको बताया है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज इनिशियली हैविंग द कन्फेडरेटिंग सिस्टम, उसके पास कन्फेडरेटिंग सिस्टम था, लेकिन लेटर ऑन व्हेन आफ्टर द कन्वेंशन चार्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के बाद व्हेन स्टेट्स स्टार्टेड टू हैव मोर पावर्स, इवन देन वो जो स्टेट्स थी दे वर नॉट विलिंग टू सरेंडर देयर ऑटोनॉमी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे वर स्टिल नॉट कोऑपरेटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम। और ना कोऑपरेट करने की वजह से जब सिविल वॉर हुई तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो साउदर्न स्टेट्स का हुआ, और साउदर्न स्टेट्स ने दे अगेन सपोर्टेड मोर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिविल वॉर की वजह से। और वो ये कह रहे थे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो मुल्क में इन चीजों को रोक सकती। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, देयर आर टोटल 27, you know it, there are only 26 functional, and out of those 26 functional, amendment number 8 and amendment number 10 and amendment number 14 played an important role while giving more rights to the central government. Central government को ज्यादा पावर्स इन्होंने देने की कोशिश कर दी। दो अमेंडमेंट्स थी पूरी 27 अमेंडमेंट में से जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को की पावर को कंटेन करने की कोशिश की। अदरवाइज एवरी अमेंडमेंट वाज इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू गेट माय आइडिया? ये बात मैंने क्या बोली है, समझ आई है कि नहीं आई? हेलो और सुती कौम, हेलो आगे सर समझ आगे जी सर। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एज आई टोल्ड यू कि उसने बहुत अहम किरदार अदा किया while giving more and more rights, more and more powers to the central government over the federating states। और उसके बाद एक और फेडरलिज्म की बड़ी मशहूर है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे, क्योंकि रिसोर्सेज कहाँ से आते थे? उसके पास ट्रेड की, ट्रीटीज करने की फॉरेन स्टेट्स के साथ थी, पोस्टल सर्विसेज उसके पास थी, आर्म फोर्सेस रेगुलेशन थे, पैटेंट कॉपीराइट्स उनके पास थे, रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर उसके पास था, क्वानेज करेंसी उसके पास थी, क्रेडिट एंड नेशन लोन वगैरह सारे उसके पास थे। तो फेडरलिज्म के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हैविंग मोर लिवरेज इन फिस्कल फेडरलिज्म, मोर लिवरेज इन
फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा पैसे आने लगे वक्त के साथ साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स दे वर लुकिंग टुवर्ड्स द फेडरेटिंग स्टेट्स, दे वर लुकिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव मोर एंड मोर पावर फॉर देम। उसके बाद इंटरनेशनल सिचुएशन या क्या थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगरचे वो आइसोलेशन में रहा, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर आप लोगों ने ये देखा 20th सेंचुरी के अंदर 50 साल 100 तकरीबन 70-80 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे 100 साल के अंदर या अभी तक जितने भी इसके साल गुजरे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वॉर के अंदर रहा है। कभी वियतनाम वार के अंदर घुस गया, कभी अफगानिस्तान वार में, कभी गल्फ वार के अंदर, कभी जनाब कोल्ड वार के अंदर, कभी वर्ल्ड वार 1 के अंदर, कभी वर्ल्ड वार 2 के अंदर। ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन थी, दिस इंटरनेशनल सिचुएशन गेव मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द कंट्री। यू गेट माय आइडिया? यस सर। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर मोर इंक्लाइंड। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कहती है सेंटर के अंदर उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर होंगे, बाकी चाहे पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर आ जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए, वो कभी भी अपनी पावर दुनिया को देने के लिए राजी नहीं होते, सरेंडर नहीं करते। अमेरिका के अंदर भी यही हाल है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो ज्यादा से ज्यादा पावर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती है। व्हेन दीज पॉलिटिकल पार्टीज गो फॉर द मोर एंड मोर सेंट्रलाइजेशन, अल्टीमेटली दे रिजल्ट इन व्हाट? दे क्रिएट अ मोर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो वो इसी वजह से फेडरलिज्म बड़ा मजबूत हुआ। उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट ने जनाब R&D के ऊपर बड़ा रिसर्च की, डिफेंस को इनविंसिबल बना दिया, स्पेस वार के ऊपर ले गया, कोल्ड वार से जिताया और बहुत सारे काम किए उसने। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी रोल बड़ा अहम है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट जितना भी बताया, जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज का बताया, सो वाज द केस विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। दे वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर इन देयर हैंड्स। दिस इज हाउ दे क्रिएटेड अ मोर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और उसके बाद डिफेंस आ गया वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसके अंदर आप जो चीजें मुझसे पूछनी है पूछ लो बेटा, फेडरलिज्म के ऊपर। चलो मेरा पुत्र पूछो, जल्दी करो। जी बेटा। सर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की एग्जांपल्स दी थी कोई? मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 2 अमेंडमेंट ऐसी हैं, एक 10 और एक 14, जिसके अंदर स्टेट्स को मोर पावर देने की कोशिश की गई। बाकी रेस्ट ऑफ द 27 जो अमेंडमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फेवर किसको करती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करती हैं। यू गेट माय आइडिया? एक अमेंडमेंट नंबर 10, एक अमेंडमेंट नंबर 14 जो है वो पावर देती हैं, दे ट्राई देयर लेवल, ये पावर ट्राई करती हैं कि फेडरेटिंग स्टेट्स को ज्यादा पावर मिले। अदरवाइज 27 में से जो रेस्ट ऑफ अदर्स जो अमेंडमेंट्स हैं दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू गेट माय आइडिया? मेरी बात समझ आई? यस सर। ओके, और पूछो जरा मेरे बेटा, और पूछो। अच्छा बच्चों, अब ये सारी इसको मैं बंद करने लगा हूं और मैं आप लोगों से पूछने लगा हूं कि मिड का सारे बच्चे अपने कान वगैरह खोल के पूछें, मुझे बताएं कि मिड कैसे करना है। जी बताओ सर। असाइनमेंट्स रख लें। देखो जी सर असाइनमेंट ठीक है, एक असाइनमेंट मिड के लिए और एक असाइनमेंट फाइनल के लिए सर। फाइनल सर ठीक है, एक मिड के लिए और एक फाइनल के लिए, 2 असाइनमेंट। एक एक करके बोलो भाई। हाँ जी। यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ था कंसेंसस के बाद, असाइनमेंट्स पे सब एग्री थे, असाइनमेंट हो गए। तहरीम, ये काम मुश्किल है, 30 नंबर की असाइनमेंट लेना बहुत टफ बात है, मर जाओगे आप लोग। सर आप 15-20 हजार वोट ना देना ना सर। नहीं, मैंने कहा देने, मैंने 5-6-7 हजार ही वर्ड लेने आप लोगों से। सर जी चले 25-25 नंबर के 4 कर दें। सर अच्छा अगली बात सुने, मेरी बात सुने। अगर मैं आप लोगों को ओपन बुक दे दूं, ग्रेट सर। ओपन बुक देकर बहुत अच्छे सर। 1 घंटा दे दूं मैं आप लोगों को, 1 घंटा, दुनिया की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा लो, वो जो क्वेश्चंस दूंगा मैं आप लोगों को उसको 1 घंटे में आंसर करना है आपने। सर ऑनलाइन होगा कैसे सर? समझ नहीं आ रही सर। सर जी थोड़ा टफ लग रहा है सर, ऐसा कर दें सर। मेरी बात सुनो, ओपन बुक के अंदर बुक मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, आपने उनमें से खोल के उन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है और आपके पास 1 घंटा होगा मिड के लिए। सर जी रिकमेंड कितना अर्सा पहले करेंगे? नहीं, उसी दिन करूंगा, उसी दिन करोगे बेटा। सर जी ये तो थोड़ा टफ हो गया है सर आप अपने जो आपने पढ़ाया है सर उसी में से ओपन बुक ले ले सर। यार कॉन्सेप्ट्स वही होंगे, किताबें डिफरेंट होंगी सर। लेकिन सर अगर कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन जो हम खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर सर, मतलब अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर और हमें जरूरत ही नहीं बुक की, फिर
नहीं जानी, लेकिन आपको रेलिवेंट जो वैसे क्या हो एग्जांपल्स, गए, जज्बाती हो गए? नहीं कोई बात नहीं, ये सही बात कर रहा है वो कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत अच्छे माशाल्लाह क्लियर हैं, तो आपने उस क्वेश्चंस को जब आंसर देना है तो उस मैंने क्या देखना है, उस किताब के नॉलेज के मुताबिक चेक करना है। सर ये सही नहीं है सर, क्योंकि सर अब उस किताब आप ऐसा करें सर, कोई ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन दे ताकि हम अटेम्प्ट कर दें कि और बाकी हम जहाँ से भी करें। यार 25 नंबर नहीं 30 नंबर का मिड होता है भाई, 30 नंबर का मिड होता है सर